Hi students, welcome back. Myself Rutu Kothari. Today we are going to start with the economics chapter number 6 unemployment, right? इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा poverty. Now we are going to start with unemployment. Unemployment मतलब बेरोजगारी, right? जो पर्सन के पास काम नहीं है उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, बट वो एक्चुअली एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है. अगर हम देखना चाहे तो वो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि जहाँ पे एक पर्सन को चाहिए काम, ही इज विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क, पर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे. वैसे तो बहुत सारे जन है जिसको काम ही नहीं करना, तो वो दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, राइट? So the persons who are willing to work but are not getting work, they are known as unemployed. The persons who does not want to work, जिसको काम करना ही नहीं है, तो वो unemployed नहीं बोले जाएंगे. They won't be considered as unemployed, right? And we know that unemployment is such a situation and it has become a global problem today, right? No matter how much you are educated, sometimes you do not get job which you deserve, right? आपको लगता है कि आप जिसके लिए डिजर्व करते हो वो जॉब आपको नहीं मिल पाता है, right? So that is also one thing, right? So we can say that unemployment is a global problem today, right? So it is one of the long-term issue which we are trying to solve, but there are many things which come on the way due to which our country, that means developing country, is facing problems like unemployment. Now we are going to first learn the meaning of unemployment, कि unemployment का meaning क्या है. So according to Professor Pigou, a person can be called unemployed only when he is willing to work but is not able to find work. कब कोई आदमी को आप अनएम्प्लॉयड बोल सकते हो? जब उनको काम करना है, दे आर विलिंग टू वर्क, पर उनके पास काम नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग वर्क. एट दैट टाइम यू कैन कॉल दैट पर्सन एज अनएम्प्लॉयड. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन. वो एक ऐसी सिचुएशन है वेयर a person is ready and capable of working. A person is ready, he is willing to work and he has capacity to work. He has capacity to work at current wage rate. जो भी current wage rate है उसके साथ ही वो काम करना चाहता है, पर उसको काम नहीं मिलता. At that time that person is called as unemployment and he or she is facing the situation of unemployment, right? Now, over here we can say that according to the above definition, so according to the above definition given, करंट वेज रेट के हिसाब से आदमी काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिलता. ही इज ईगर, ही इज विलिंग टू वर्क बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग वर्क. एट दैट टाइम यू कैन कॉल दैट पर्सन एज अनएम्प्लॉयड, राइट? सो ओवर हियर उन्होंने क्या बोला है कि जब कोई आदमी ईगर है, काम करने के लिए ईगर है, ही हैज दैट एंथुजियाज्म, he wants to work, he is willing to work at the current wage rate, पर उसको काम नहीं मिलता है, then he is said to be unwilling. What is said to be? Unwilling unemployment or compulsory nature of unemployment, that you can see on page number 66, right? That according to the definition, current wage rate, a person is eager and ready to work but is deprived of work, then he is called as he's said to be unwilling unemployment or compulsory nature of unemployment. Similarly, जब एक आदमी को विलिंग ही नहीं है, उसके पास विलिंगनेस ही नहीं है कि उसको काम नहीं करना है, जो भी वेज रेट है उसके हिसाब से, स्टिल दैट पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क, राइट? and he is not able to find job, then but obviously he is not called unemployed. उसको unemployed हम नहीं बोलेंगे. So where a person is not willing to work and is not ready to work and not getting work, then he is not said to be unemployed. For example, small children, babies, right? Then elder people, some weak people, these are the people who are not considered unemployed क्योंकि उनको काम नहीं करना है. They are not willing to work anymore, right? No matter the wages, no matter the situation, no matter the job if they are getting or not. But if they do not want to work, then they are not called to be unemployed, right? So they do not belong to the
problem of unemployment, you can say. They're not considered in it. So the term unemployment is understood in terms of supply of active workforce. आप कितना अपना workforce supply करना चाहते हो कोई भी काम करने के लिए, उसके हिसाब से आपकी कितनी इच्छा है वो काम करने के लिए पर आपको काम नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से हम अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में देखेंगे. एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई इंक्लूड्स द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 64 years. कितने एज ग्रुप के बीच में एक्टिव वर्कफोर्स हम देख सकते हैं? 15 to 64 years. So from the meaning of unemployment, it can be said that unwilling or compulsory nature of unemployment जो है वो ज्यादातर इंडिया में मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है. that they are willing to work but still they are not getting work, they are deprived of work. तो वैसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? unemployment, right? Now what you are going to learn. और एक चीज है कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन फेस करते हैं उनको क्या होता है कि दे आर नॉट विलिंग टू लिव इन द सोसाइटी, दे डू नॉट हैव दैट डिग्निटी. उनके पास वो है नहीं, वो डिग्निटी नहीं है, वो पहचान नहीं बना पाते. उनके वो सारे फैक्टर्स भी उनको बहुत बुरी तरीके से उनके मेंटल हेल्थ को भी, उनके सोशल लाइफ को, उनके फिजिकल बॉडी को भी अफेक्ट करते हैं. Right, so there arise many problems due to that you cannot feel that you are having a dignity, you do not have that dignity to work, right? So now we are going to start with types of unemployment. Types of unemployment. अब हर एक कंट्री में मतलब डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग नेचर के साथ होता है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. So in developed countries they have said that due to the lack of effective demand, हम लोग वहाँ पे ज्यादातर शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है. इन डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज विच आर ऑलरेडी डेवलप्ड, USA you can say, right? So these are the countries which are already developed. सो दे आर मेनली फॉर शॉर्ट टर्म. कि इसके लिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन दिखती है. एंड दे मेनली फेस इट साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. what is cyclical, what is frictional, we are going to learn in the types of unemployment. This is what we are just discussing कि वहां पे कैसी unemployment situation वो लोग face करते हैं. Then when we talk about developing countries, जब आप developing countries के बारे में हम बात करेंगे, over there like India, तो वहाँ पे ज़्यादातर structural unemployment दिखता है. मतलब यहाँ पे लोगों को काम करना है फिर भी उनको काम नहीं मिल पाता है due to some or the other reason, right? And over here when we talk about developing countries, that is long term. Unemployment is not for the short term period, it is for the long term period. लंबे टाइम तक वो असर रहता है. So now over this, to know the nature and the types of unemployment, कि कैसे हम types of unemployment को देखेंगे, उसके लिए श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट, श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट हैज गिवन इन 2011-12 दे हैव गिवन 4 मेजर्स कि ये 4 मेजर के थ्रू आप टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. अब कौन से 4 मेजर्स हम कंसिडर करते हैं जब हम कोई भी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं तब. So the 4 measures are time, income, willingness and productivity. Time, income, willingness and productivity. ये 4 measure को हम consider करते हैं whenever we are going to learn something about the types of unemployment. Now time. Time मतलब क्या? That if any person who has willingness, who is willing and who has capacity to work but does not get work for more than 28 hours, for more than how many hours? 28 hours, he is said to be intensively unemployed. उसको क्या बोला जाएगा? Intensively unemployed. And the person who are employed, जो already काम करते हैं पर उनकी time limit है more than 28 hours and less than 42 hours, तो उनको क्या बोला जाएगा? They are considered to be less intensive unemployed, right? तो टाइम के हिसाब से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसको जॉब नहीं मिली वो ही अनएम्प्लॉयड. नो, जिसको जॉब मिली है पर फिर भी टाइम ड्यूरेशन कम है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे?
अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट. सो इट इज वन ऑफ द मेजर्स, इट इज वन ऑफ द मेजर थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जब आप टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे तब ये सारी चीज का ही मिक्सचर होगा, राइट. Then second we have income. So when a person gets very less income, which can even solve the problem of his poverty, then from that income viewpoint he is poor. तो वो कैसे कंसिडर होगा, वो आदमी पुअर कंसिडर होगा. कि if for example if he has a family and he needs 30,000 per month, पर उसकी इनकम 15,000 है, या जो भी प्रेजेंट जॉब कर रहा है उससे भी कम है, 15,000 से भी कम है, then he is not able to fulfill the basic needs, and therefore he is considered to be poor. Though he is earning, though he is having a job, उसके पास जॉब भी है, वो कमा भी रहा है, पर उसकी इनकम जो लिमिट है उससे कम है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज नहीं फुलफिल कर पाता है, देन ही इज कंसिडर्ड टू बी, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी, ही इज कंसिडर्ड टू बी पुअर. वो पुअर में गिना जाएगा. दो ही इज एम्प्लॉयड, स्टिल इज कंसिडर्ड टू बी पुअर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर विच वी विल कंसिडर व्हेन वी आर लर्निंग द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देन वी हैव विलिंगनेस मतलब इच्छा, कि कितनी इच्छा है उसको, कितना उसमें ईगरनेस है कि उसको काम करना ही है, राइट. सो व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल ऑफ गेटिंग गुड जॉब बट ही और शी डज नॉट गेट गुड जॉब एज पर हिज और हर एलिजिबिलिटी, मतलब जो एलिजिबिलिटी है उससे कम पोजीशन पे उसको जॉब मिलता है. एलिजिबिलिटी मतलब आपका क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स के हिसाब से आप जो डिजर्व करते हो उससे भी कम पोजीशन पे या उससे कम काम आपको मिल पाता है. एट दैट टाइम ऑल्सो वी कंसिडर इट एज अनएम्प्लॉयड, राइट. सो दे हैव written over here and that particular person, the person who wants to work, who is willing to work but has to accept lower cadre job than what he desires. अब for example यहाँ पे लिखा है कि the person who is CA has to work as clerk. सीए की डिग्री है उसके पास, पर सीए के रिलेटेड जॉब नहीं मिल पा रहा है उसको, देन ही इज वर्किंग एज अ क्लर्क. दैट मीन्स उसके जो पोजीशन है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उससे लो कैडर जॉब वो कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर व्हेन यू थिंक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. एंड द लास्ट इज प्रोडक्टिविटी. सो व्हेन अ लेबरर is working with less than his actual productive capacity, लेबरर के पास जितनी कैपेसिटी है उससे भी कम कैपेसिटी में उसको काम करना पड़ता है, then that is also one of the drawback when you consider unemployment, right. Example, a person can make 20 meters cloth in a day. उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 20 मीटर क्लॉथ वो एक दिन में बना सके, पर वो जो जॉब करता है उसमें हर दिन उसको सिर्फ 10 मीटर्स क्लॉथ बनाना पड़ता है. मतलब उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जितनी है उससे कम का काम उसको करना पड़ता है, एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी unemployment, right. So these are the measuring rods which are considered when you study types of unemployment or when you want to study the situation of unemployment, right. So these are the measures. Which are the measure? Time, income, willingness and productivity. Time, income, willingness and productivity. These are the 4 measures which you have to keep in mind. So now we are going to start with types of unemployment. The first type of unemployment is open unemployment, which is also known as fully unemployment, right? Open unemployment or fully unemployment. Now, meaning those individuals who are ready to work, at current wage rate, जो भी wage rate market में चल रहा है उसके हिसाब से, and possesses qualifications too, उसके related उनके पास qualification भी है, but do not get job, फिर भी उनको job नहीं मिल पाता है, then that person is called to be said to be open unemployed, or you can say fully unemployed. कि उसके पास qualification है, he or she is willing to work, but still at the current wage rate, जो भी wage rate उनको मिल रहा है उसके हिसाब से, but still they are not being able to get the job. At that time you can call that person to be fully unemployed or openly
अनएम्प्लॉयड। अब ये सारी चीजें कहाँ पे ज्यादातर दिखती है? देन इट इज सीन इन सिटीज मोर देन इन विलेजेस। विलेजेस से ज्यादा सिटीज में यहाँ पे ये ज्यादातर दिखता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस, फ्रॉम विलेजेस पीपल माइग्रेट टू सिटीज फॉर वर्क। यहाँ पे वो लोग आ जाता है, फ्रॉम विलेजेस दे कम टू सिटी फॉर वर्क, और जब वो लोग आते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन होता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी पीपल आर एम्प्लॉयड। जो पोजीशंस उनको चाहिए उसके लिए ऑलरेडी पीपल आर वर्किंग ऑन इट, देयरफॉर दे डू नॉट गेट द जॉब, देयरफॉर दे आर कॉल्ड टू बी ओपनली unemployed, right? So people suffering from open unemployment are educated or less trained and skilled persons. They are not the person who do not have qualifications, who are not who are illiterate, right? Who are illiterate. ऐसे लोग नहीं आते। openly unemployed में कैसे लोग होते हैं? जो educated है, जिसके पास qualification है, जिसके पास skills है, पर फिर भी just because they are not trained well for few things or because of other limitations of resources, they do not get, they are not able to do the job, or they are not able to find the job, and therefore they are considered to be unemployed. They are considered to be unemployed, right? So over here they have said that normally ज़्यादातर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कौन से एज ग्रुप के बीच में दिखती है? 15 to 25 years, 15 to 25 years की, जहाँ पे आदमी के पास क्वालिफिकेशन है, सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता है ड्यू टू सम और द अदर रीजन, देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? नाउ सेकेंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. When laborers cannot utilize their capacity fully and for certain period accept less capable job is said to be underemployment. मतलब जैसे हमने अभी CA के बारे में पढ़ा वो ही चीज है, राइट? हमने देखा कि CA की क्वालिफिकेशन है पर्सन के पास, ही हैज द क्वालिफिकेशन ऑफ CA बट स्टिल ही हैज टू वर्क एज अ क्लर्क, राइट? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है. सो व्हाट डिड ही डू? ही एक्सेप्टेड द लेस केपेबल जॉब विच ही डिजायर्स. उसको जो उसको मिलना चाहिए उससे भी लेस केपेबल जॉब उसने सिलेक्ट किया, right? Just because of the situation of unemployment, right? So over here also it has given that जो आदमी मतलब less capable, capacity भी कम है, right? If you are a person, if you are a laborer, if you are working, if you are willing to work for 8 hours a day, पर आपको जॉब सिर्फ 5 hours a day ही मिलता है और उसके हिसाब से आपको wages भी कम मिलेंगे, right? So that also situation is considered to be underemployed. What it is considered to be underemployment. तो यहाँ पे उन्होंने लेबरर्स मतलब जो फार्म्स के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम करते हैं उसके बारे में दिया है. दैट फॉर एग्जाम्पल अ लेबर वर्किंग इन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लैंड गेट्स वर्क ओनली फॉर 5 hours. उसको काम कितना मिलता है? सिर्फ 5 घंटे के लिए, पर उसके पास कैपेसिटी कितनी है? 8 घंटे काम करने के लिए, राइट? Instead of 8 hours, then he is said to be underemployed. What he is said to be? Underemployed. So according to this, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is a type of unemployment. ये भी एक type है students, seasonal unemployment. It is also one of the type कि जहाँ पे seasons के हिसाब से laborers काम करते हैं, वरना जब भी वो season खत्म हो जाती है उसके बाद they remain unemployed. They remain unemployed because they do not have any alternative option. उनको दूसरा कुछ आता नहीं है, and they do not have any alternative option to work on, right? So ड्यू टू दिस इन रूरल इंडिया ज्यादातर जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो वहाँ पे बिकॉज द लेबरर इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट्स वर्क ओनली ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. मतलब जब एग्रीकल्चर की सीजन है तभी उसको काम करने के लिए मिलेगा, उसके बाद दैट पर्सन विल रिमेन अनएम्प्लॉयड. सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अंडर एम्प्लॉयड. एंड द पर्टिकुलर सिचुएशन विच आई एक्सप्लेन्ड यू कि जब भी सीजन होती है तभी वो लोग काम करते हैं. वंस द सीजन इज ओवर दे रिमेन unemployed, and that is also known as seasonal unemployment. What it is also known as seasonal unemployment, right? So due to monsoon and due to irrigational facility वो लोग ज्यादातर काम नहीं करते. जितना काम हुआ, जितना सोविंग का पीरियड था या हार्वेस्टिंग का पीरियड था उतने टाइम तक काम कर लिया and then it's over, right? So this particular
सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और जो पर्टिकुलर पर्सन अपने कैपेसिटी से कम काम एक्सेप्ट करता है, राइट, ही हैज टू डू द लो कैडर जॉब देन व्हाट दैट पर्सन डिजर्व्स अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, according to the capable job, that is also known as unemployed. That is also known as unemployment, right? Or you can say underemployed. Sorry, what you can say underemployed. So here also they have given an example that a person with the degree of computer engineer works in a garage. राइट, सो हमने देखा कि वो उसके क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियर के क्वालिफिकेशन की बिलो का काम वो कर रहा है, गैरेज में काम कर रहा है. सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयड, राइट. देन वी हैव थर्ड टाइप इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, कि जो वो दिखता नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखता नहीं है, पर जब वो परफॉर्म करते तब हमारे टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी तरह का असर आता नहीं है, right? So in any activity, if too many persons are employed at the given level of technology, and when a few persons are removed from work, the total production does not change. Then there exists disguised unemployment. जब आपको नेसेसरी जो भी काम करना है उसके लिए वर्कर्स है आपके पास, और एडिशनल वर्कर्स आ जाए और आप एडिशनल वर्कर्स को उसमें से निकाल दो, पर फिर भी आपके टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी तरह का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट वोंट मेक एनी चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन. इफ यू आर गोइंग टू एम्प्लॉयड मोर वर्कर्स इन इट, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, टोटल प्रोडक्शन उतना ही रहने वाला है, क्योंकि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट वोंट प्ले एनी रोल इन दिस. देयरफॉर इट इज known as disguised unemployment. What it is known as? Disguised unemployment, right? So over here they have given that एक एग्जाम्पल दिया है that if 10 hectare land is to be optimally used, 10 हेक्टर का लैंड एरिया दिया है, उसको आपको यूज करना है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज करना है. तो 10 हेक्टर लैंड के ऊपर मैक्स टू मैक्स 5 जन काम कर सकते हैं. यू नीड 5 पर्सन्स टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. यू नीड 5 लेबरर्स, बट स्टिल additional 3 members of your family also added up. They also said that we will also come and work, right? So what happened over here? You didn't wanted those 3 extra members. अगर वो 3 एक्स्ट्रा मेंबर आते हैं फिर भी आपका प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहने वाला है, और अगर 5 मेंबर काम करते थे जो पहले, वो अगर काम करेंगे फिर भी आपका प्रोडक्शन उतने का उतना ही रहेगा. क्यों उतने का उतना रहेगा? क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना, लैंड एरिया तो लिमिटेड है, 10 हेक्टर्स में ही काम करना है, right? So production won't increase, the total production won't make any change even if the 3 family members are adding up to the production activity, right? So that particular thing is known as, those persons are known as disguisedly unemployed. What they are known as? Disguisedly unemployed. कि जिसके contribution के through total production पे कोई भी तरह का असर नहीं होता है, right? Those are known as disguisedly unemployed. These laborers visibly do not seem to be unemployed. वो हम लोग को दिखते नहीं है कि वो unemployed है, पर हमें पता है कि उनका यहाँ पे आना और काम करना हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं देने वाला है, उनका कंट्रीब्यूशन कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाला है. हमारे पहले जो 5 एम्प्लॉयज थे वो जितना काम करेंगे उतने में हमारा टोटल प्रोडक्शन तो वैसे भी हो जाने वाला है. बिकॉज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड, दे आर जस्ट विजिबल that they are there, but why they are still considered to be unemployed? Because the marginal productivity is zero. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, मतलब वो लोग जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 0 के समान है, उससे हमारे टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी तरह का असर नहीं दिखेगा, राइट? सो दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इट इज नोन एज? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Then we have cyclical unemployment. What do we have? Cyclical unemployment. Now cyclical unemployment कब दिखता है? जब we have different classes of society, मतलब different classes in the society, rich class, poor class, middle class, unequal distribution of income है, ये सारी चीजें हैं, तब हम लोग को cyclical unemployment जैसे situation दिखेगी. कि जहाँ पे इकोनॉमी, कभी कभी इकोनॉमी की बात कर रही हूँ,
कि जहाँ पे इकोनॉमी कभी कभी प्रॉस्पेरिटी फेस करती है तो कभी कभी डिप्रेशन फेस करती है। जैसे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से लोग भी वहां पे बिहेव करेंगे, राइट। सो वेन एवर ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी, जब टाइम बहुत अच्छा चलता है, सो ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी देर इज हाई इन्वेस्टमेंट। देर इज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? High investment, right? People will keep investing more and more in that. So there is high investment. प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो हाई। प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, इनकम भी ज्यादा जनरेट होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। बट व्हेन द इकोनॉमी फेसेस डिप्रेशन, वही सिचुएशन में इकोनॉमी जब डिप्रेशन फेस करेगा तब देयर विल बी रिडक्शन इन डिमांड। डिमांड कम हो जाएगी, उसके सामने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, और वो सारी सिचुएशन जब फेस करेगी तब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, क्योंकि डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन प्रोसेस बराबर से नहीं चलेगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट। सो योर डिप्रेशन बिकम्स द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन जैसे सिचुएशन जब इकोनॉमी में अराइज होती है, दैट अराइजेस द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर 3 नेम्स: साइक्लिकल, डिप्रेसिव और ट्रेड साइकिल। साइक्लिकल मतलब जो चेंजेस आते रहते हैं वो इकोनॉमी में। डिप्रेसिव मतलब जो हमने देखा कि डिप्रेशन का स्टेज जब आएगा इकोनॉमी में तब ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, इसलिए। एंड ट्रेड साइकिल मतलब प्रॉस्पेरिटी डिप्रेशन वाला, आपको ट्रेड साइकिल 11th का याद आया ही होगा, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेम्स. So there are 3 names for it: cyclical unemployment, depressive unemployment and trade cycle unemployment. Now this is just the thing that when was the Great Depression occurred in the world. So America experienced severe depression. America जैसे स्टेट ने भी severe depression फेस किया है. कौन से स्टेज में? 19 मतलब कौन से ईयर में? 1929-30. 1929 to 1930 they faced severe depression. And all the countries of the world were entirely facing the same thing, but America was one of the major, and that is why the depression was known as Great Depression. What that depression was known as? Great Depression, right? So in India, due to capitalist market mechanism, इंडिया में हम लोग कैपिटल और सोशलिस्ट दोनों तरीके से चलते हैं. सो एवरी नाउ एंड देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन. ज्यादातर हम लोग इंडिया में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं बिकॉज ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में वो दिखता है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में भी कभी कभी वो चीज दिखती है, राइट. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम लोग को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? द स्टेट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. ज्यादातर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और प्रोडक्शन के पीछे खर्चा करना पड़ेगा, कि जिसके थ्रू अगर आप वो चीज बढ़ाओगे, अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, अगर आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ाओगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी तो उनकी वजह से उनका इनकम लेवल रेज होगा. इनकम ज्यादा कमाएंगे तो इफेक्टिव डिमांड भी क्रिएट कर पाएंगे, जिसके थ्रू वो साइकिल चलती रहेगी. दैट इफ पीपल आर एम्प्लॉयड, they are getting good amount of income, they are going to demand more, and due to demand there will be more of production activity and other activities where you are going to employ more number of people to perform that activity, right? So I hope you are clear with the cycle कि अगर ये साइकिल को कैसे इम्प्रूव करना है तो ये सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी ये साइकिल इम्प्रूव होगी और अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा. Then we have frictional unemployment. This is the last type, that is the frictional unemployment. Frictional unemployment कब देखा जाता है? When there are technological changes. जब कोई भी पुरानी चेंज हो, कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज हो, जब उसको रिप्लेस करके नई चीजें रिप्लेस की जाती है,
ओल्ड की जगह पे न्यू मेथड्स लिए जाते हैं, तब हम ये सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं. सो व्हेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड, बिकॉज ऑफ द change in demand or production or due to the change in taste and preference of consumer. अगर टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होते रहेंगे, प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज होती रहेगी, डिमांड चेंज होती रहेगी, तो उसकी वजह से लोग क्या ज्यादातर प्रीफर करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी प्रीफर करेंगे, राइट. सो दे विल प्रीफर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू गुड्स विच एंटर इन द मार्केट एंड ड्यू टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस. कि जो पुराने लोग हैं उनको ये अडॉप्ट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए. अगर वो लोग नई टेक्नोलॉजीज या नई मेथड्स या नए गुड्स नहीं अडॉप्ट करने वाले, तो लोग उनके पास से परचेज नहीं करने वाले हैं. दे आर गोइंग टू रिमेन अनएम्प्लॉयड एंड द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हु आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कमिंग इन टू द मार्केट, दे विल बी अर्निंग मोर money, right? So this particular unemployment is known as frictional unemployment. What it is known as? Frictional unemployment. So in a developed nation, when old production, developed nation, देखो क्या बोला है, in developed nation, ज्यादातर ये चीजें वहां पे दिखती है, डेवलपिंग नेशन में उतना फर्क नहीं पड़ता. सो इन अ डेवलप्ड नेशन, when old production production system is replaced by the new production system, then the units which were having the old production system, they face the problem of frictional unemployment. But this is for the short term duration, students. This is for the short term duration, कि जब तक उन लोग को आता नहीं है तभी तक वो अपना बिजनेस शट डाउन करेंगे. पूरे नई टेक्निक्स अगर अडॉप्ट करनी है, बिजनेस चलाना है, तो नई टेक्निक सीखेंगे और बिजनेस अपना फिर से स्टार्ट करेंगे. तो जितने टाइम तक वो लोग बंद रखते हैं, अपना बिजनेस शट डाउन रखते हैं, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट पर्टिकुलर फेज विच दे आर फेसिंग इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. बट दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म. व्हाट डिड आई टेल यू? दिस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म. एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिया है, when smartphone is replaced by old mobile phones, then the laborers engaged in production, sales and service of old mobile phones become unemployed. अगर जो पुराने डब्बे आते थे उनके जो लेबरर्स है वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि नए लेबर्स ने पूरा मार्केट ले लिया है स्मार्टफोन्स वालों ने. सो दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इट इज नोन एज? frictional unemployment. So this year we end at the first part. In the second part you're going to learn the causes of unemployment. Then we have the remaining things. So I hope you are clear with this. अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको इंस्टाग्राम आईडी और वो तो दिया ही गया है, नंबर्स भी दिए गए हैं, you can contact us over there, right? So I hope you are clear with this types of unemployment and the meaning of unemployment, right? Thank you.